Today we are going to discuss about the agents of pollination. So in previous class we discussed about the different type of pollination like self pollination, cross pollination, okay, about autogamy. Next about this chesmogamous flower or device, clistogamous device, and about the gymnogamy and their example like oxalis, okay, commelina and viola. Clear? Their merits and demerits, and about this xenogamy, or this is the type of here cross pollination. Okay, so now we are going to discuss the agents of pollination. So as you know that in case of flowering plants, both male and female gametes are non-motile. Okay, that's why they require agents for pollination. Okay, and these agents, they may be abiotic or they may be biotic agents. So here the abiotic or non-living agents, they include mainly water and wind. Okay, and biotic, here biotic means living agents. They may be here insect or birds or different type of small organisms also. But as compared to biotic and abiotic, here this biotic, it is very favorable than abiotic. ओके, हमने ये डिस्कस कर चुका है, क्योंकि एबायोटिक जो होता है उसमें क्या होगा, हियर इट मेनली इंक्लूड और इट मेनली हेल्प विद द हेल्प ऑफ विंड एंड वाटर, तो इसके हेल्प से वो पोलिनेशन करेगा. ओके, बट it is the chance factor. This abiotic agents, they are the chance factor. कैसे? क्योंकि अगर for example suppose this is the male part and here is the female part. Okay, और इसमें this is the pollen grain, और इसमें अगर here this pollen grain is transferred from male part to female part through the abiotic factor, suppose through this wind के through से वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है. ओके, देखो अगर विंड का डायरेक्शन अगर मतलब इस तरफ है तो श्योरली दिस पोलन ग्रेन इट गेट, इसमें क्या होगा, हियर दिस पोलन ग्रेन इट फॉल्स अपॉन दिस स्टिग्मा. अगर बाय चांस हियर द विंड का जो डायरेक्शन है वो अगर ऑपोजिट हो जाएगा तो देन दिस पोलन ग्रेन इट फेल टू फॉल्स इनसाइड दिस स्टिग्मा. तो विंड के थ्रू से या फिर वाटर के थ्रू से ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ श्योरली ये पोलिनेशन इसमें होगा. That's why here it is known that it may be a chance factor, मतलब by chance हो सकता है wind and water के through. Okay, so as compared to abiotic, this biotic, okay, this is very favorable or very suitable than abiotic. तो इसलिए in abiotic में क्या किया जाता है, here the male part, इसमें जो male part है it release the amount, means enormous amount of pollen grains they are released. तो male part उसमें मीन्स सपोज इसमें अगर 1000 पोलन ग्रेन उसने रिलीज कर दिया, 1000 पोलन ग्रेन अगर रिलीज कर दिया मेल पार्ट, क्यों रिलीज करता है, क्योंकि उसको उन्होंने सोचा कि हाँ 1000 पोलन ग्रेन से हाँ 10 तो पोलन ग्रेन इसमें अटैच होंगे और इसमें फर्टिलाइज करेंगे. ओके, सो दैट दिस मेल प्लांट दे हैव टू रिलीज द thousands of pollen grain. Okay, and here as compared to this, these ovules are very less. ओके, फॉर दिस पोलिनेशन. तो ओव्यूल्स को ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, पर इसमें तो पोलन ग्रेन से उसको ज्यादा होने की जरूरत है, क्योंकि वो क्या करेगा, ट्रांसफर होगा थ्रू दिस विंड. ओके, और विंड जो है उसमें उसके थ्रू से आएगा तो वो पोलिनेशन में भी हो सकता है और may not be. सो एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल, हियर इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉर्न कॉब which is a type of tassel. Tassel means what? Tassel means a stigma and style. मतलब tassel जो है उसका फीमेल पार्ट है, और here this female part, ये जो फीमेल पार्ट है this is here it is very feathery, मतलब इसमें feathery होता है, feather like structure डेवलप होता है. क्लियर? क्यों? To कैप्चर द पोलन ग्रेन. तो ये फीदरी क्यों होता है, ताकि वो पोलन ग्रेन को, बहुत सारे जो thousands ऑफ पोलन ग्रेन आएंगे उसमें से मेनली 10 या 20 पोलन ग्रेन तो ट्रैप्ड हो पाए उसमें. दैट्स व्हाई दिस फीमेल पार्ट इट इज फीदरी. अगेन दिस पोलन ग्रेन, ओके, इट इज वेरी लाइट भी होगा, इट इज वेरी नॉन स्टिकी ऑल्सो.
मतलब जो एंथर में जो पोलन ग्रैंड रिलीज होगा दैट पोलन ग्रैंड इज नॉन स्टिकी है. नेक्स्ट लाइट है. लाइट क्यों है? सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्ट इन दिस विंड करंट. तो वो विंड करंट के थ्रू वो इजिली ट्रांसपोर्ट हो सकता है. एंड नेक्स्ट दिस स्टेमन हियर इन दिस स्टेमन दे आर वेरी वेल एक्सपोज्ड. ओके, वेल एक्सपोज क्यों होता है? क्योंकि ताकि वो पोलन ग्रैंड इजिली वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा. और अगर वो मेल एंड फीमेल पार्ट इफ दो आर मींस बोथ आर वेल एक्सपोज्ड देन ओनली क्रॉस पोलिनेशन ऑकर्स. उसके बाद ही क्रॉस पोलिनेशन अच्छे से हो सकता है. पहले से ही हमने पढ़ा है हियर इन केस ऑफ चेस्मोगेमस. चेस्मोगेमस में क्या होता है? बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर एक्सपोज्ड. तो इसलिए उसमें सेल्फ पोलिनेशन भी होता है और क्रॉस पोलिनेशन भी होता है एज कंपेयर टू द क्लिस्टोगेमस फ्लावर. ओके, likewise here also this male and female part they are well exposed, so that this feathery stigma they can easily trap this airborne pollen grain. इसमें easily वो pollen trap हो सकता है. और ये जो फ्लावर है this group of flower that forms the inflorescence. ये inflorescence फॉर्म करते हैं ताकि बहुत सारे स्टिग्मा स्टाइल और बहुत सारे फीमेल पार्ट यहाँ पे आ सकते हैं. और here all this means flower that form the inflorescence to trap this pollen grain. And this wind pollinated or wind pollination, this is common in grasses. Okay, grasses, and here it is mostly common in gymnosperm. Clear? Remember that in gymnospermic plant pollination occurs through wind only, not through water or not through any biotic agent. That occurs through only wind. So if this pollination it occurs through wind, that is known as anemophily. Anemophily. और अभी जब जैसे हमने की पढ़ा कि this in this anemophilous flower this pollen grain it should be very light होना चाहिए. इसमें air sac होना चाहिए, means air उसमें store होना चाहिए. Okay, it have wings, उसमें wings भी होता है. Okay, to become this pollen grain lighter. उसमें light. और next है this flower they are small, colorless and odorless. तो इसमें जो कि एयर थ्रू या फिर विंड थ्रू वो ट्रांसफर होगा, तो इसमें फ्लावर्स को मतलब ज्यादा कलरफुल होने की या फिर सेंटेड होने की जरूरत नहीं है. मतलब इसे किसी को अट्रैक्ट करना नहीं है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना नहीं है. दैट्स व्हाई दिस फ्लावर दे आर स्मॉल. इसमें स्मॉल होता है, कलर इतना भी नहीं होता है या फिर ऑर्डर भी नहीं होता है. ओके, एंड दिस पोलन ग्रेन आर वेरी ड्राई. एंड एंथर इसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन होंगे. एंड दे हैव लॉन्ग फिलामेंट एंड आर अबाउंडेंट. ओके, एंड हियर द स्टिग्मा आर स्टिकी एंड फीदरी. ओके, इसमें पोलन ग्रेन्स जो है स्टेमन में जो पोलन ग्रेन होगा दैट इज नॉन स्टिकी, वो नॉन स्टिकी है. ओके, पोलन ग्रेन आर नॉन स्टिकी बट दिस स्टिग्मा आर वेरी मच स्टिकी. दैट्स व्हाई they can easily trap this pollen grain. And here this example it's seen in case of mainly gymnosperm and monocot plant like mulberry, date palm, grass, coconut, okay, willow, maize, jar and cannabis. So these are the example of monocot plant. Next comes to this water pollination. Here if this pollination it occurs through this water, that condition is known as hydrophily. जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि हाँ एबायोटिक एजेंट्स दे मे बी एयर और दे मे बी वाटर. ओके, दे मे बी एयर और दे मे बी वाटर. इफ यू कंपेयर बोथ एयर एंड वाटर देन दिस एयर इट इज वेरी मच मींस सुटेबल एज कंपेयर टू द वाटर. क्योंकि एयर के थ्रू क्या होता है वो इजीली पोलन ग्रेन डिस्पर्स हो जाता है और वो डेस्टिनी में पहुंच जाते हैं. ओके, लेकिन वाटर के थ्रू मतलब मोस्ट ऑफ दिस और प्लांट्स दे आर नॉट प्रेजेंट इन दिस वाटर. सभी प्लांट्स वाटर में प्रेजेंट नहीं होंगे, तो वाटर के थ्रू जो पोल्यूशन होता है वो बहुत कम होता है. क्लियर? सो हियर दिस इज नोन एज हाइड्रोफिली. ओके, हियर दिस हाइड्रोफिली तो पानी के अंदर होना है, तो इसलिए फ्लावर आर वेरी स्मॉल, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस. इसमें ये तीनों की जरूरत नहीं है. And stigma itself will be long and sticky, okay, and unwettable. तो पहले से ही वो वेट होता है उसमें और वो पहले से ही इसमें क्या होगा
स्टिकी होता है. सो इन केस ऑफ हाइड्रोफिली ओके और पोलिनेशन इन वाटर, इसमें मेनली 30 जनरा में ये पाया जाता है, मतलब बहुत कम एज कम्पेयर टू द वाटर. बायोटिक में तो बहुत सारे हैं, बट एबायोटिक में एयर एंड वाटर में से भी, वाटर में से कितना बहुत कम, जैसे कि 30 जनरा में ही वो मोस्टली मोनोकट में पाया जाता है हाइड्रोफिली कंडीशन. मतलब वाटर के थ्रू अगर पोलन का ट्रांसफर होगा वो 30 जनरा में ही वो पाया जाता है. ओके और वाटर मतलब हियर मोस्ट इट इज मोस्ट कॉमन इन एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट. तो पहले से भी हम पढ़े हैं कि हाँ दिस फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन इट ऑकर्स थ्रू वाटर इन केस ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. ये तीनों में मेनली क्या होता है, वाटर के थ्रू ही फर्टिलाइजेशन होता है. क्लियर? And in case of flowering plant, this when water pollinated plant are mainly Vallisneria, okay, Vallisneria hydra here, which grow in the fresh water. Okay, and marine sea grasses जो होता है, that sea grasses also known as Zostera. Remember this point, Zostera. This is also known as sea grasses. And so this is the marine grass. Zostera जो है वो marine मतलब सी वाटर में वो ग्रो करेगा, और वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला जो है वो फ्रेश वाटर में ग्रो करेगा. Another aquatic plant that is water hyacinth and water lily. So these two are also this hydrophyte, मतलब वो वाटर में ग्रो करेंगे. बट जरूरी नहीं है कि जो प्लांट्स, those plants that grow inside this water, जो कि वाटर के अंदर ग्रो कर रहे हैं, तो इसमें हाइड्रोफिली ही हो, मतलब water pollination ही हो. Okay, means all are not water pollinated plant that grow inside this water. Okay, for example in case of water hyacinth and water lily, इसमें क्या होगा, ये wind pollinated है. Water hyacinth this is the free living or this is the free floating hydrophyte जो water में freely float करता है. ठीक है, this is the hydrophyte plant. Okay, water lily is also this is the floating hydrophyte. But here in both the condition, इसमें क्या होगा, not through this water, water के through pollination नहीं होता है. इसमें क्या होगा, this pollen grain transferred from one plant to the another plant through wind. Wind के through हो सकता है या फिर insect के through हो सकता है. Okay. Okay, they may be biotic or they may be abiotic. But here this hydrophilic condition is seen in case of Vallisneria and Zostera. How? देखो, here in case of Vallisneria, here this presence of female flower that reach on the surface of this water by long stalk, and this male flower or this pollen grain are released on this surface of this water. And this male flower or pollen grain ये क्या करता है, वाटर करंट के थ्रू वो मूव करता है. किसके, ये फीमेल फ्लावर के इसमें मूव करता है. एज यू कैन सी दिस इज द वेलिस्नेरिया फ्लावर. तो इसमें जो फीमेल पार्ट है वो दैट हैविंग द लॉन्ग स्टॉक, ये लॉन्ग स्टॉक है इसमें. ओके, सो थ्रू दिस लॉन्ग स्टॉक हियर दिस फीमेल पार्ट इट रीच अप टू दिस सरफेस ऑफ दिस वाटर. यहाँ तक वो आ जाता है. पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर मतलब वो फ्लावर में सिर्फ पिस्टिल और फीमेल पार्ट है. ओके, एंड अगेन इन दिस मेल फ्लावर इसमें क्या होगा, दिस स्टेमिनेट फ्लावर मतलब जो पोलन ग्रेन है ये इजिली थ्रू दिस वाटर करंट, वाटर मतलब वो वाटर ही उसको हेल्प करता है. ओके, टू रीच द सरफेस ऑफ दिस वाटर. ओके, तो यहाँ तक वो पहुंच जाता है. दिस मेल फ्लावर एंड दिस इज द फीमेल फ्लावर. तो इसमें कौन हेल्प कर रहा है, वाटर हेल्प कर रहा है. ओके, एंड थ्रू दिस वाटर व्हाट हैपेंड, दिस पोलन ग्रेन इट इजिली रीच into this pistillate flower. ये जो पोलन ग्रेन है और मेल फ्लावर है कहाँ तक आ गया है, वो पिस्टिल तक आ गया है. ओके, तो ये तो हो गया इन केस ऑफ वेलिस्नेरिया, जिसमें कि जो फीमेल फ्लावर है और मेल फ्लावर है वो वाटर के सरफेस तक आ जाते हैं. एंड हियर इट हेल्प्स द मींस हियर द वाटर करंट, थ्रू दिस वाटर करंट दे रीच ऑन द सरफेस ऑफ दिस वाटर. ओके, बट हियर इन केस ऑफ सी ग्रास, जो और एक जो पोलिनेटेड प्लांट है जोस्टेरा और सी ग्रास. तो सी ग्रास में क्या होंगे, सी ग्रास दैट इज द सबमर्ज प्लांट. वो सबमर्ज प्लांट मतलब प्लांट के अंदर ही वो रहते हैं, वाटर के अंदर ही वो रहते हैं.
ओके तो इसमें जो मेल फ्लावर है और पोलन ग्रेन है, ऑब्वियसली दे आर रिलीज इनसाइड दिस वाटर, वाटर में वो रिलीज होगा, बट दिस पोलन ग्रेन इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग हो जाएगा। वो कैसे होगा? दिस इज वेरी लॉन्ग एंड रिबन शेप्ड, तो ये वाटर के अंदर ही रहेगा, लेकिन वो पोलन ग्रेन दैट इज द रिबन शेप्ड, वो रिबन शेप्ड जैसे ही होगा और लॉन्ग होता है। ओके एंड थ्रू दिस वाटर इट कैरी inside this water and reaches up to the stigma to achieve this pollination. तो वाटर की सरफेस तक नहीं जाता है सी ग्रास में, ओके वेलिस्नेरिया में वो वाटर के सरफेस तक जाता है थ्रू वाटर करंट, लेकिन इसमें सी ग्रास में वो सबमर्ज होके ही रहता है और उसका जो पोलन ग्रेन है वो लॉन्ग होगा, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होगा और वाटर के थ्रू वो वाटर के अंदर ही दे कैन ट्रांसफर to this stigma, okay, and it means prefer fertilization. और मोस्टली जितने भी वाटर पोलिनेटेड पोलन ग्रेन है, ओके दे आर सराउंडेड बाय द म्यूसिलिजिनस कवरिंग, तो इसके ऊपर एक म्यूसिलिजिनस कवरिंग सराउंड होता है। इट प्रोटेक्ट दिस पोलन ग्रेन फ्रॉम दिस वेटिंग। तो देखो इसमें इसलिए कहा गया है the Valisneria, here this male and female part that reaches on the surface of this water, that's why this condition is known as epihydrophily. Epi means above this water this pollen grain occurs, pollination occurs, and hypohydrophily water के नीचे, मतलब सबमर्जली जो वाटर में ही जो पोलिनेशन होता है, that seen in case of Zostera और सेराटोफाइलम। ओके एक क्वेश्चन है उसमें, बोथ वाइंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डोंट प्रोड्यूस नेक्टर, व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस, व्हाट वुड बी द आंसर? तो इसमें देखो हियर नो बायोटिक एजेंट्स आर इन्वॉल्व लाइक इंसेक्ट और बर्ड्स। अगर इसमें बर्ड्स और इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन होता देन दिस फ्लावर देयर शुड डेफिनेटली कलरफुल और नेक्टर, क्योंकि कलरफुल होना, नेक्टर होना, इसको मतलब किसको अट्रैक्ट कर सकते हो? विंड और वाटर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके दे आर अट्रैक्टेड बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बर्ड्स, बर्ड्स को कलरफुल पेटल्स चाहिए। ओके देन इंसेक्ट दे रिक्वायर द नेक्टर, नॉट इन केस ऑफ विंड एंड वाटर। So in the next class we'll discuss about the biotic agents, how these biotic agents that help in this pollination or in this process of total pollination. Though this biotic agent, this is very dominant than abiotic agents. तो इसमें क्वेश्चन आता है the example of air pollinating or air pollinating flower, that is corn, cuff, tassel, और नेक्स्ट है तुम्हारा वालिस्नेरिया और हाइड्रिला का और जोस्टेरा का। तो प्लीज वंस रीड ऑल दिस मैकेनिज्म, 1 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है। थैंक यू।